Hi, I'm Dr. Rajni Patil. I'm a spine and sports physiotherapist practicing for over 25 years here in Shivaji Park, Mumbai. I believe that pain should not limit you from doing whatever it is that you love to do, whether it is playing a sport or just going for a walk. In this channel, I give you a lot of tips and tricks in order to live pain-free and injury-free. I just did a shoe clinic activity in my clinic and I realized कि फ्लैट फुट के बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं. लोगों को पता ही नहीं होता है उनको फ्लैट फुट है और इसके लिए गलत शूज पहन के वर्कआउट करते रहते हैं. एंड स्पेशली दिस लेडी हु वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग आउट फ्रॉम होम barefoot and in wrong shoes in spite of being flat footed. इसके वजह से उनको bunions, heel pain, knee pain ये सब कुछ था. By being able to identify if you have flat foot or not, you can make sure that heel pain और ये सारी problems आपको ना हो. Watch the video till the end because I'm going to give you a free PDF which will give you tips on how to buy the shoes correctly. Flat foot क्या होता है? Flat foot is called pes planus, मतलब आप जब खड़े होते हैं आपके आर्चेस कंप्लीटली फ्लैट होते हैं, जमीन को टच करते हैं. इसके 3 टाइप्स है. आपका कौन सा टाइप है ये पता होना जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सकता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लैट फुट इज अ फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट. फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट कौन सा होता है? जब आप चल रहे हैं तो आपका फुट कंप्लीटली फ्लैट होता है ग्राउंड पे, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं तो आपको आर्च थोड़ा दिख रहा है. दिस इज अ फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट. जनरली ये टीनेज ईयर्स में बिल्ड होता है और जैसे आप अडल्टहुड में आते हैं फ्लैट हो जाते हैं आर्चेस जब आप खड़े होते हैं. This can be fixed with a lot of correction in soles, footwear, shoes and exercises. Second type of flat foot is a rigid flat foot. A rigid flat foot means that you were born with a flat foot and now it's probably difficult to correct it into adulthood. जब आप खड़े होते हैं चलते हैं तब completely जमीन पे टच होता है आपका आर्च और आप जब बैठते हैं तभी भी वो फ्लैट ही है. इसमें बोनी चेंजेस आ चुके होते हैं, इसलिए अगर हम करेक्ट करते हैं इसको अग्रेसिवली तो शायद पेन भी आ सकता है. द थर्ड टाइप ऑफ फ्लैट फुट इज ए फॉलन आर्च. फॉलन आर्च मीन्स दैट थ्रू चाइल्डहुड, थ्रू टीनेज ईयर्स, अर्ली अडल्टहुड शायद आपके आर्चेस अच्छे खासे थे, लेकिन फॉर सम रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके आर्चेस कोलैप्स होते गए. I am the prime example of that. When I was pregnant with my daughter for the second time, because I gained weight very quickly, मेरा right foot completely flat हो गया. My left was totally okay, and I was able to correct it in 3 months with the help of insoles and exercises. So, if you do have flat foot, figure out which type of flat foot you are so that you know how to take care of it. Flat foot होना बहुत बुरी बात नहीं है. It's quite common. So don't worry if you do have one of these flat feet. But it's important that you do something about it. क्योंकि अगर आप flat foot को properly treat नहीं करते हैं, expert को नहीं दिखाते हैं, intervention properly नहीं करते हैं at the right time, तो ये आगे चल के problem दे सकती है आपको. क्या क्या problems आते हैं? Bunions, heel pain, foot pain, knee pain. These are mostly related to flat feet. इन माई नेक्स्ट फ्यू अपकमिंग वीडियोज मैं ये एग्जैक्ट टॉपिक्स एड्रेस करने वाली हूँ. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब सो यू विल बी एबल टू वॉच दोज वीडियोज. फ्लैट फुट क्यों होता है ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं मुझे. देर आर मेनी रीजंस. इट्स डिफिकल्ट टू से कि ये एग्जैक्ट रीजन की वजह से हुआ है. इट कुड बी मेनी ऑफ दीज रीजंस होगा आपका. Number 1 cause is wearing the wrong type of footwear and shoes for your daily activities. अगर आप ऑफिस जाते हैं तब आपके फुटवेयर करेक्ट है कि नहीं, आप वॉक करते हैं तब, रन करते हैं तब, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर शूज आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर यू इन वट एवर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग. इफ यू वांट सम हेल्प विद दिस, आई हैव मेड अ PDF that will help you understand exactly how to pick the correct shoes for you. I will put the link in the description. Just pick it up. Cause number 2 for having a flat foot is that you haven't really worked on foot mobility. अगर आपके काफ मसल्स टाइट हैं, अगर आप कूल डाउन स्ट्रेचिंग ज़्यादा नहीं करते, जिम करते हैं उसके बाद स्ट्रेच नहीं करते, वॉक के बाद स्ट्रेच नहीं करते, तो ये काफ्स टाइट होते जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द बायोमैकेनिकल फोर्सेस दैट कम फ्रॉम द फीट अप, इसके वजह से धीरे धीरे ये आर्चेस कोलैप्स होने लगते हैं. थर्ड रीजन इज वीक इंट्रिंसिक मसल्स.
जो बॉटम होता है अपना फुट का, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए। ओवर टाइम अगर हम फुटवेयर करेक्ट नहीं पहनते, अगर वेट गेन होता है फॉर वट एवर रीजन, ये मसल्स वीक होते जाते हैं। वन कॉज फॉर दैट इज ऑल्सो इफ यू डोंट वॉक अराउंड बेयर फुट एट होम, ऑलवेज इन स्लीपर्स, ऑलवेज इन शूज, अपना फुट फील ही नहीं करता है जमीन को, इट डजंट नो हाउ टू बी स्ट्रांग। धीरे धीरे अगर ये मसल्स वीक होते जाते हैं, दैट लीड्स टू फ्लैट फुट। कॉज नंबर 4, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज एंड ये बहुत मिसअंडरस्टूड है एंड पीपल इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। द रीजन इज अ वीक कोर एंड ग्लूट मसल्स। अगर हमारे कोर मसल्स स्ट्रांग है, अगर हमारे ग्लूट मसल्स स्ट्रांग है, तो हमारे आर्चेस हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। In fact, it helps a lot of other problems. So make sure that your core is nice and strong. So how can you fix flat foot? There are 5 ways that you can do that. The first one is to pay attention and check your feet. Remember कि हमारे feet change होते रहते हैं throughout life. I told you my example. I've seen many of my patients कि पहले उनके flat feet नहीं थे लेकिन बाद में हो गए, या flat foot था और धीरे धीरे उनके arches build होने लगे. So please, that's the step number 1. Please get your feet checked by an expert to understand whether you do have flat foot or not. Point number 2, you must always be in some sort of corrective footwear. अगर आप घर पे बहुत देर खड़े रहते हैं या ऑफिस में ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो अगर आपको फ्लैट फुट है, आपको some type of correction घर पे भी लगेगा और ऑफिस में भी लगेगा. How can you do that? By using footwear that has medial arch support. अगर आप ये चप्पल देखते हैं, आपकी रेगुलर चप्पल में अंदर ये पार्ट थोड़ा एलिवेशन नहीं होता है. इन करेक्टिव फुटवेयर दिस एलिवेशन इज देयर. ये क्या करेगा, आपके फ्लैट फुट को सपोर्ट करेगा, सो दैट जब आप खड़े हैं आप बायोमैकेनिकली प्रॉपरली अलाइन हैं और ये सब एक्स एंड पेन्स आपको आएंगे ही नहीं. पॉइंट नंबर 3, शूज. वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लिए कौन से शूज परफेक्ट है फॉर योर एक्टिविटी ऑफ चॉइस, ये फाइंड आउट करिए. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक करते हैं तो आपके वॉकिंग शूज कौन से होने चाहिए. अगर आपका फ्लैट फुट है या लो आर्चेस है तो उसके हिसाब से शूज लीजिए. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. दीज 2 शूज आर वेरी डिफरेंट, राइट. अगर आपको फ्लैट फुट है तो अंदर मीडियल आर्च सपोर्ट लगेगा आपको. वो शू बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए. स्पेशली ये यहाँ बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है. एज अपोज टू दिस शू विच हैज अ लॉट ऑफ सपोर्ट बिल्ट इन. अंदर आर्च सपोर्ट भी है, यहाँ से भी स्टिफ है और यहाँ से भी स्टिफ है, राइट. सो यू वांट टू मेक श्योर दैट योर फुट is properly supported, your arches are properly supported in the shoes that you're wearing. Point number 4, insoles. Insoles सबके लिए नहीं होते हैं, so if you need insoles or not, ये आप अपने एक्सपर्ट से पूछिए, आपके फिजियोथेरेपिस्ट से, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से. Insoles look like this. Again, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे वो करेक्शन है. Insoles I recommend to people who either have 2 different types of feet. एक फ्लैट फुट है लेकिन दूसरा नहीं है, या दोनों फीट या दोनों फीट की साइज अलग है, शेप अलग है, देन इंसोल्स कम वेरी हैंडी. अगर कंप्लीटली फ्लैट फुटेड है एंड इफ इट इज अ रिजिड फ्लैट फुट, देन इंसोल्स आर नॉट रिकमेंडेड. देन यू कैन जस्ट गो विथ अ शू दैट सूट्स यू वेल एंड देन गो फ्रॉम देयर. बट इंसोल्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस. लोगों को लगता है कि इंसोल्स लगाने से लाइफ टाइम पहनना पड़ेगा, एंड दैट मे बी पॉसिबल इफ यू हैव फ्लैट फुट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट समटाइम्स दैट्स नॉट ट्रू. You can wear it for 2 years, 3 years, and then eventually by doing proper exercises and physio, you can probably develop your arches and then get rid of insoles. Point number 5, this is probably the most important one. The reason for flat foot is also that your arches are weak, the muscles are weak. अगर आप फुटवेयर करेक्ट करते हो, इंसोल्स डालते हो, लेकिन आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपकी फ्लैट फुट करेक्ट नहीं होंगे. रिमेंबर, फ्लैट फुट को फिक्स करने के लिए ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करना जरूरी है. कोई एक स्टेप आप करेंगे और दूसरा मिस हो जाएगा तो करेक्ट नहीं होगा.
So what are the exercises to be done? I'm sharing a video, my previous video, it has all the foot exercises that you should be doing. ये आज ही start करिए, very simple basic exercises but they are very very powerful. दिन में 2 बार करेंगे तो जल्दी results आएंगे. So अगर आपको flat foot है, you know how to fix it. Do all of these things that I've asked you to do and you will see a big difference in your pain. Don't forget to watch my upcoming videos about bunions, knee pain and heel pain, because this will give you a lot of insight on, if you have those problems, how to make them go away. Don't forget to subscribe and definitely do comment and let me know if you like this video.